जोश, जज्बे, बहादुरी और समर्पण की मिसाल है इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी के शौर्य की गूंज हर भारतीय के दिल में गूंजती है। भारतीय सेना के इसी शौर्य और बलिदान को समर्पित एक मोटरसाइकिल राइड का चंडीगढ़ में आयोजन किया गया। 7 और 8 नवंबर को लेक क्लब में होने वाले मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल के लिए आयोजित ब्रेव हार्ट्स बाइक राइड को पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फ्लैग ऑफ कर रवाना किया। चंडीगढ़ क्लब के पास से शुरू हुई 24 किलोमीटर की इस बाइक राइड के दौरान बाइकर्स चंडीगढ़, पंचकूला और मोहाली से गुजरते हुए चंडी मंदिर आर्मी स्टेशन पहुंचे। हर वर्ष चंडीगढ़ में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल से पहले इस बाइक राइड का आयोजन किया जाता है। इसी श्रृंखला में यह 9वीं बाइक राइड थी। हर साल यह राइड भारतीय सेना के साहसिक कार्यों को समर्पित की जाती है। इस बार यह राइड सन 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के जवानों, सैन्य अफसरों व शहीदों को समर्पित रही। राइड में 23 बाइकिंग ग्रुप्स के 670 राइडर्स ने भाग लिया। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। ਅੱਜ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਰਾਈਡਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਲ ਓਵਰ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਈਡਰਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਕਰਨਲ ਰਮਿੰਦਰ ਬਰਾੜ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਨਾ। ਤੇ ਸਰ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰਵੀਨ। ਰਮਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਰਾਈਡ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਵੀਨ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਰਾਈਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੂੰ, ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਦੇ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। So this concept is part of the military literature festival that we organize, and it symbolizes that ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ from all walks of life, including every young man from Punjab, we get together and pay homage to the memory of the martyrs and the heroes of the various wars that we fought. And in this particular ride, we are honoring the brave hearts, the heroes, the martyrs of the 1965 Indo-Pak War. So this is a tribute and a salute to the heroes and the martyrs that took part in the 1965 war. Okay, so next ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਰਾਈਡਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਿਸ ਵੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠੇ ਰਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that was about 1300 plus थी। और इस वारी ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਈਡਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ 665 ਰਾਈਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਆਰਮੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲਮੈਂਟ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੈਂਗ ਔਨ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 665 ਰਾਈਡਰਸ, there are 23 lovely groups who've been riding with us, and we are deeply grateful and honored that everybody responds so well on joining up for this ride and paying homage to the martyrs. So ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। On behalf of the entire organizing committee, General Shergill, who is the chairman of the Military Literature Festival, we are deeply grateful to the young riders who come and join us on this ride. So sir, ਆਪਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਕ ਚਲਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਕ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡ, ਆਪਣਾ ਬਰੇਵ ਹਾਰਟ ਫੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀडम ਜਿਹੜੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਈਡਰਸ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਡਰਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਈਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਮਿਲਟਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮੀ। I think that's a very nice feeling. I'm happy you say that, and I dare say that we will promote a lot of more such group interaction where people get to see the culture of the army and how it merges with the civilian population. So this is one good occasion that on the military literature festival we actually engage with the civilian population. So thanks for your this bike, and we hope we will go for yes, further. we will look forward. Thank you very much.
So now we are going to talk to Brigadier Pradeep Sharma. He is from the day first the ride was organized. So let's talk to him. Sir, good morning. मॉर्निंग जी। सर ब्रिगेडियर साहब ये बताइए कि आप इस राइडिंग कम्युनिटी से कैसे जुड़े और आपकी बटालियन कहाँ से आप, क्योंकि आप ब्रिगेडियर हैं तो नेचुरली यू आर फ्रॉम आर्मी फैमिली, बट हाउ यू कम विद द राइडिंग कम्युनिटी एंड यू ऑर्गेनाइज ऑल दीज थिंग्स? ओके, यू वांट मी टू इन हिंदी और इंग्लिश? एनी लैंग्वेज। देखिए, मैं 1970s से मोटरसाइकिल राइड करने का शौक रखता हूँ और चंडीगढ़ में एक लड़का है मेरा दोस्त शशिपाल सिंह गर्चा। हमारे ग्रुप ने चंडीगढ़ और पंजाब मोटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन इस्टेब्लिश किया था 70s में, और जहाँ सेक्रेटेरिएट है इसके पीछे का ग्राउंड दिया गया था हमारे को वो रैलीज और मोटोक्रॉस वगैरह कराने का। बाद में फिर हिमालयन मोटोक्रॉस कन्वर्ट कर दिया और मैं तो इस संस्था के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूँ। और क्योंकि ये राइड जो है ये फौजी जिन्होंने शहादत दी है जंग में, उनकी इज्जत और उनको नमन देने के लिए की जाती है। हर साल मैं राइड में पार्टिसिपेट करता हूँ। पिछले साल कारगिल दिवस था, इस बार सन 65 का है। और मेरे को और भी ज़्यादा खुशी है क्योंकि मेरी यूनिट 65 में अमृतसर में जंग लड़ी थी और उनको बोला जाता है अमृतसर के सेवियर्स। बैटल ऑफ डोगराई का उनको खिताब दिया गया है। अगर आप पीछे देखो तो डोगराई लिखा हुआ है। और हमने अभी ही 75th एनिवर्सरी इसकी सेलिब्रेट करी है कासा और अमृतसर में, जहां हमने जितने नज़दीक जा सके जंग के मैदान में जगह जगह पुरानी जो याददाश्त थी वो ताज़ी करी। और हमारे साथ 65 के वेटरन्स भी मिले हुए थे। ओह, वेरी गुड। सो इसमें शामिल होकर मेरे को गर्व होता है बहुत। और जनता को, आम पब्लिक को फौज क्या करती है और जो हमारे जिन्होंने शहादत दी है उनके लिए थोड़ा सा नमन करने का भी मौका मिलता है। So sir, what you can say to our riders, young riders, because they are starting their careers also, but they are also new in the riding community. So what you can say to young hearts? ओके, बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। जब हम मोटरसाइकिल चलाते थे तो सड़क के ऊपर एक गाड़ी या दो गाड़ियाँ होती थी। चंडीगढ़ में मध्यमार्ग खाली होती थी। खाली, बिल्कुल। आज के दिन ट्रैफिक इतना बढ़ गया है और आबादी इतनी बढ़ गई है तो उससे रोड सेफ्टी जो है वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है हर ड्राइवर की। और जितने टू व्हीलर्स चलाते हैं तो उनको सबसे पहले सेफ्टी या सेफ ड्राइविंग के नियम सीखने की ज़रूरत है। अगर वो सेफ ड्राइविंग के नियम नहीं सीखेंगे तो दुर्घटना होगी। सो सबसे पहले बी रिस्पॉन्सिबल, लर्न सेफ ड्राइविंग, फॉलो ट्रैफिक रूल्स एंड रोड एटिकेट्स। फिर जब आप सेल्फ डिसिप्लिन होते हो, आप पढ़ाई में ठीक काम करते हो, आप फिर चुनिए आपने किस महकमे के साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी बतानी है। आज की तारीख पे मैं 75 साल का हो गया हूँ, मैं अभी भी अपने यूनिट के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हर साल यूनिट में जाते हैं और जोरों शोर से रेजिंग डे मनाते हैं हम। थैंक यू। थैंक यू। सो ये थे हमारे ब्रिगेडियर प्रदीप शर्मा जी, और इसमें सबसे बढ़िया बात जो उन्होंने कही यंगस्टर्स के लिए, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी का बहुत लंबा सफ़र अभी तय करना है और तय करने के लिए उनको सड़क पे उतरना पड़ेगा। और सड़क पे उतरेंगे तो वो अपनी बाइक पे, अपनी गाड़ी पे, अपनी साइकिल पे, किसी भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ उतरेंगे तो आपको अपनी सेफ्टी सेफ्स के तहत पहले अपनी सेफ्टी, और उसके लिए आप सेफ्टी गियर्स के साथ सड़क पे उतरें, पूरी ऑबिडियंस के साथ उतरें, ट्रैफिक रूल्स को मानें और साथ में सजग रहें, क्योंकि आपकी सजगता ही देश की सुरक्षा के लिए और देश के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इसी के साथ ब्रिगेडियर जी, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस एंड वी विल सी यू नेक्स्ट ईयर गोइंग। थैंक यू सर।